You cannot expect wife or a mother to leave her job and rear the child. So my first time was a pressurized pregnancy. कि बच्चा तो हो जाता है, उसके बाद सब लोग पूछते हैं इसका क्या करना है. मदर के सिग्नेचर पर अबॉर्शन हो सकता है. यू डू नॉट रिक्वायर पार्टनर्स साइन और कॉन्सेंट. कि 17 साल की बच्ची के पीरियड बंद करने हैं जब तक कि वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती. वो 28 साल में अगर शादी करती है तब तक 17 से 28 साल तक कोई भी समझेगा नहीं इस बात को. तो उसके साथ आई थिंक वी हैव टू फाइंड दीज वेज ऑफ और दीज हैक्स टू गिव एन इकोसिस्टम टू द किड. Also at this point I think what matters is parents की क्या हैबिट्स हैं, क्योंकि बच्चा हमसे सीख रहा है. तो अगर हम टू मच ऑफ फोन या लैपटॉप पे हर वक्त बैठे हैं, किड्स आर सीइंग दिस. आई नो मेरिया जब बेड पे थी, what she went through and what a mother goes through is very very different. It's life changing. क्योंकि प्रिपेयर नहीं किया. लेबर क्या है, किसी ने लेबर नहीं सिखाया, किसी ने पार्टोग्राम नहीं बताया कितने घंटे की लेबर होने वाली है. 36 आवर्स भी लग सकते हैं. फोटो शूट करें या बेबी मून पर चले जाए, मगर ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो किसी ने. They should be highlighted. Hello everyone, my name is Pranav Vashisht and I am your host at The Gut Feel Show. This is a podcast on mental well-being where we invite guests from all walks of life to discuss different stories of inspiration, transformation and also motivation. Our today's guests are two ladies. One is a doctor and another is a captain retired from the army. Now promoting female health pre and post pregnancy. Dr. Aruna Kalra is a really great doctor and also my personal gynecologist who helped us during our pregnancy. What we discussed today was all about pre, during and post pregnancy journey of a mother. How it starts, how it goes on and how it transitions towards becoming a mother. How it is not just all about photo shoots, it is all about the reality which hits after becoming a mother. The real struggle that begins once you have the baby in your hand, how difficult it is, what is post-pregnancy depression, what is all about the awareness that is needed for a mother to get a baby to the family, and how it is the role of the complete family, and what is the role of a nuclear family, and what is the role of the joint family to bring up a baby to this life. It is lot of information and knowledge and wisdom that you should look forward to. So please keep watching till the end and subscribe us for more such interesting content. Hello and welcome to the Gut Feel Show, Captain Ritu and Dr. Anurag Kalra. I would like to begin this conversation and I feel this is going to be a very interesting one because you both come from a very different background and an experience, like a range of experience. I would like to begin with the pre-pregnancy stage. Like how is it for the new parents, because there are still a lot of families जहाँ पे pressure डाला जाता है कि शादी को एक साल हो गया, आपने बच्चा क्यों नहीं करा, आप बच्चा कर लो. So how does it go? How much is it important for the husband and wife to be ready for the pregnancy? What do you think? Okay. So प्रणव, सबसे पहली बात कि आप भी तो न्यू पेरेंट हैं. क्या आपने अपनी वाइफ से, मेरा से बात की थी इस बारे में when you were planning for conception? Yes, we did. I think हम दोनों ने definitely बात करी थी and we discussed कि it is very important for both of us to be on the same page. Otherwise क्या होगा, अगर miscommunication होगा और if we are doing it under pressure तो later on it will backfire. And luckily we both were on the same page and we both were ready for it. We both were like, let's do it. कभी आया ही नहीं कि कोई confusion है. So we were ready for it. But I've heard from a lot of my friends कि यार parents रोज pressure डाल रहे हैं, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ, बहुत मतलब घर पे जाता हूँ तो यही बातें होती हैं, तो they are like in that stress. But कई बार इस stress में अगर pregnancy हो जाती है तो maybe it backfires also at times. See, मैं बिल्कुल इस बात से एकदम इत्तेफाक रखती हूँ क्योंकि दोनों का डिसीजन बहुत ज़रूरी है. और आजकल डबल इनकम ग्रुप जो हमारे कपल हैं उसमें दोनों को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है बच्चे की. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट वाइफ और अ मदर टू लीव हर जॉब एंड रियर द चाइल्ड. और बहुत बार ऐसा होता है फैमिली प्रेशर में, नॉट ओनली सन, मोस्टली डॉटर इन लॉ इज़ आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स कि भाई क्या हो रहा है. और
जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हैं, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू आप दोनों को ही कंट्रीब्यूट करना होगा बच्चे के को आगे उसकी ग्रोथ में। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन होना है, और बिकॉज nowadays we are having pregnancy at a later age like after 30, तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक मदर और फादर दोनों को कोई जेनेटिक abnormality तो नहीं है, वैक्सीनेशन प्रॉपर है कि नहीं है, इम्यूनिटी ठीक है कि नहीं है, वो सब फर्टिलिटी कोशेंट क्या है आपका, हाउ फार हाउ मच यू कैन वेट फॉर प्लानिंग फॉर कंसेप्शन, वो सारी चीज़ें एक प्री कंसेप्शन कंसल्ट में होना चाहिए, इवन इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग राइट नाउ। मतलब अगर आप प्लान नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम पता है कि 1 साल बाद करना है कि 2 साल बाद करना है, क्या हम वेट कर सकते हैं, और अगर हम वेट नहीं कर सकते तो क्या हम फर्टिलिटी प्रिजर्व कर लें। Yeah. So with me, what happened, like I have 2 kids. So my first time was a pressurized pregnancy. Like in my family, everybody was pressurizing us, and literally me and my husband did not talk about it. And it actually backfired, like you said. Okay, so I was serving in the Indian Army at that time, and army is like a way of life. There are no compromises. If you're serving in the army, you got to follow the rules. You can't ask Indian Army to change for you. So there are set sort of rules. I conceived my daughter, and after I joined back, it was 6 months of maternity leave. The day I joined back from the maternity leave, they employed me for a court-martial duty in Pathankot. Okay. And I'm still feeding my baby. I'm not prepared what to do. And my husband is also posted luckily with me at the same time. But I literally hired a nanny. I took a big car gathering, and suddenly I am shifting my daughter to a top feed from the breastfeeding. And it was a tough phase of my life. So I think it's very necessary. So वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। तो सेकेंड टाइम अराउंड वी वर वेरी क्लियर, हम दोनों ने बड़े अच्छे से बात की, और हमने सोचा कि 4 साल से पहले, टिल द टाइम बड़ी वाली बेटी 4 साल या 5 साल की नहीं होती है, वी आर नॉट गोइंग टू प्लान, एंड इस टाइम बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली चलेंगे। एंड लकीली द सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। I think it is important to be on the Yeah. same page. वेरी नेसेसरी। Otherwise, that pressure just comes in, and then the bubble bursts in somewhere in life. वो कहीं ना कहीं तो फटता है bubble. बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग इतना प्रिपेयर करते हैं, अब अगर हम दोनों सेम पेज पर भी हैं तो भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि पोस्ट डिलीवरी क्या होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बच्चा तो हो जाता है, उसके बाद सब लोग सोचते हैं इसका क्या करना है, हाँ, बिकॉज वो स्लीपलेस नाइट्स और उसको पूरा टाइम 24/7 जो उसके साथ स्ट्रेस रहता है, ना सोने मिल रहा है, ना खाने, ना नेचर्स कॉल फॉर, कॉन्स्टिपेटेड हो रहे हैं आप, और कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं आपस में ही, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो आप यू नेवर एक्सपेक्टेड दैट, यू वर थिंकिंग दैट इट्स ऑल फ्लावरी Photoshoot. it is all a fairy tale. Yeah. But वो reality hit करती है अगले दिन से. For the first time around, I remember we did not even have a photo shoot. It was so unplanned. So second time, it was so strategically done, and we fought a lot, me and my husband, during the first time. So I think लड़ाई भी कम होगी अगर आप पहले बात कर लो। Correct, exactly, and that is very very important, because that is impacting your pregnancy journey also. The hormones that you release if you're fighting during your pregnancy is somewhere down the line impacting the kid. There are studies which show that the way your pregnancy period goes does impact the mental health of your kid, because subconsciously they are listening. They are listening They inside the start tummy from also. They are actually month at least feeling the emotion, what the mother is feeling. Yeah. So I think that is very very important. There is another situation that I wanted to know both of your point of view. There are couples who get into pregnancy and are not ready for it, but when they go for abortion, but clinically they are not now, they cannot do the abortion क्योंकि I think complications बढ़ चुकी हैं, या they're too far in the process. There are couples who are willing to do the baby, but there are again medical complications that they are not able to have a baby. Both of them are two sides of the coin, but both of them are in different kind of stress, different kind of situations. Do you face such clients and or patients in your process? I think ma'am can tell it much better. Yeah. हाँ, तो प्रणव, वैसे तो अभी हमारा PNDT एक्ट जो है वो चेंज हुआ है, उसमें पहले हम 20th वीक तक लीगली अबॉर्ट कर सकते थे, अब 24th वीक तक हो गया है, और मच बिफोर दैट पीपल गेट टू नो, कन्फ्यूजन रहता है ज़रूर। मेरा अभी भी एक पेशेंट थे जो कि हस्बैंड मैंने कभी नहीं देखे उनके, शी वॉज कमिंग अलोन, every time she would come she was under stress, and
she was not sure whether she would want to continue. She started coming from 8th week, and then she came around 12th week, and then she came around 16th week after every 4 weeks. And around 16th week, she said that she does not want to continue. And I was not ready for her abortion. I myself was like, she's confused. She has never come with her partner. अभी क्या चल रहा है उनका बहुत मुश्किल है. तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट घर में चल रहा है, सिर्फ एक मदर के सिग्नेचर पर अबॉर्शन हो सकता है. यू डू नॉट रिक्वायर पार्टनर साइन और कॉन्सेंट. ये मदर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और मदर का अधिकार है कि वो अबॉर्ट करा ले. मगर फिर भी आजकल हमारे पास अल्ट्रासाउंड्स हैं, इतने सारे और टेस्ट हैं, आप हर तरीके से बहुत पहले पता कर सकते हैं. और अगर आप 8 हफ्ते से लेके 16 और 20 हफ्ते तक भी इंडिसाइसिव हैं, तो आप शायद अबॉर्शन कराने के बाद भी गिल्ट में रहेंगे. बिल्कुल. है ना. तो वो एक है. और दूसरा ये है कि अगर आपने एक अबॉर्शन करा लिया है ज़िंदगी में पहले कभी, फॉर वट एवर रीज़न, एंड यू आर नॉट एबल टू कंसीव नाउ, you are under stress and you are blaming that abortion, and most of the time they start blaming that abortion and blaming themselves. कि हमने वो abortion कराया था, क्या उसका impact है. और हम लोग बहुत बार कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता. Abortion is really safe nowadays, and if you are getting regular periods after abortion, then don't worry, you are absolutely right. But still, if you are not able to conceive, there are so many tests which would test कि भाई आपकी fallopian tube खुली है कि नहीं, आपके एग ठीक से बन रहे हैं कि नहीं. और बहुत मेथड्स हैं आजकल आराम से कंसीव करने के. तो स्ट्रेस उधर भी नहीं होना चाहिए. Right. For me, like I have clients who come who have PCOD and they're unable to conceive, so they're highly stressed. So all my programs are like very holistic. So what I do is I help them with lowering down the stress levels first, and immediately as we correct their nutrition, put them under strength training and everything, their bodies are fine. और उसके बाद उनका conception आराम से हो जाता है. With clients who have some issues like that, of course we do it with I never tell them कि अपने डॉक्टर से एडवाइस मत लो, अपना जो चल रहा है PCOD का मेडिसिन वो लेते रहो, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल. बट उसके अलावा मेरे पास और तरीके के जो क्लाइंट आते हैं वो ऐसे हैं जैसे बहुत एक्सट्रीम बैक पेन है, दे आर हैविंग पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स, यूरिन लीक होता है, एक बच्चा संभल नहीं रहा है, और उसके बाद दे आर प्लानिंग द सेकेंड चाइल्ड बट देयर बॉडीज आर नॉट रेडी. सो इन सच केसेस द वुमेन wants to have a child but she doesn't want to have a child. तो वो एक बड़ा ही confused situation होता है. So I always tell them that पैदा आपको करना है तो अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो पहले. तो पहले वाली प्रेगनेंसी से हील तो हो जाओ. अब अनहील्ड बॉडी के साथ जाओगे, डैमेज उसके साथ, तो दोबारा और डबल डैमेज हो जाएगा. Correct. So and I think that is where we were discussing the last time also, that PCOD, there's a lot of lifestyle problems that we are facing, and I think a lot of couples these days are facing issues with pregnancy because of a lot of lifestyle issues, smoking, stress, anxiety, and I think you must be seeing clients. A lot of, I think, what is your take on is the current generation, although they are very aware, but they're still lacking in these fronts, and then they're seeking alternatives for pregnancy. See, I would say everybody is aware, everybody is intelligent, educated, and they have Google access. Yes. With so much of information. So ऐसा नहीं कि पता नहीं है, समझदार सभी हैं, सबको पता भी है. और लेकिन मोटिवेशन आपको कहाँ तक ले जाएगा? डिसिप्लिन ही करेंगे आप. डिसिप्लिन एज ह्यूमन हम बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते हैं. ठीक है, हम मोटिवेटेड हो जाते हैं कुछ सुन के, हाँ ठीक है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं, टाइम से सोना है, एक्सरसाइज करना है. 4 दिन वो मोटिवेशन चलता है, डिसिप्लिन अपने आप को नहीं किया. यू हैव टू हैव अ टीम. तो प्रणव, जब कोई पेशेंट आता है, जैसे आप भी कह रही हैं कि PCOD का कोई पेशेंट आया, ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि PCOD का पेशेंट आया, उसको पता है कि उसका वेट इज़ द इशू, बट शी डजंट वांट टू हियर दैट. ओके, उसको 4 डॉक्टर पहले बता चुके हैं ये, अभी 5वां भी वही बताएगा, तो वो उस चीज़ को तो उसको पता है, शी नोज दैट. तो मेरा उसके साथ सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आपको पता है, और हम एक टीम बना लेते हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर करते हैं, एक एक्सरसाइज के लिए आपका फिजियो ट्रेनर हायर करते हैं. उनको फिजियो ट्रेनर आपके घर आ जाए, वो बेल बजा दे 5:30 बजे और आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करा ले. राइट, अकाउंटेबिलिटी. हाँ, तो अगर आपको मैंने कहा कि आप जिम जाइए, तो आप नहीं जाएंगी. 4 दिन जाएंगे, जिम के पैसे देंगे, आपके पास बहुत पैसा है, आप वहाँ पर लगा देंगी. तो अगर आपको एक्चुअली करेक्ट करना है, तो यू नो दी मेथड, हायर अ टीम, डू इट.
ओके वो तो पीसीओडी का करेक्शन हो ही जाएगा। तो ऐसा सेट कि वो एजुकेटेड होते हैं, उनको पता है स्मोकिंग नहीं करनी, उनको पता है अल्कोहल, उनको पता है कि एक्सरसाइज करनी है। अभी अनदर डिजीज इज कमिंग विच आई डोंट think you are also aware, endometriosis. Yeah, endometriosis. Absolutely, it is like frustrating disease. What is that? It's painful. मैं बताती हूँ। अभी ये ऐसा है कि जैसे मेरी बिटिया है और जैसे ही वो 12, 13, 14 साल की हुई तो I would celebrate if she start menstruating, isn't it? This was celebrated always. But the menstrual cycle, if somebody is getting, and that menstrual blood is going back through fallopian tube and blood is collected in the ovaries and destroying those ovaries, eggs, it is called endometriosis. And this is so painful that and in teen also, in younger girls, 16, 17, 20s, they are developing this disease. And this disease is one, you have to stop menstrual cycles, menses. They take medicines to stop the To menstrual stop cycle. for how long? And if I ask some other, I have heard based on some family functions and based on these things, girls have started tweaking their cycles. नहीं वो but तो for है, endometriosis, it's not. they have to take Treatment medicines. is there. अगर किसी को endometriosis है जो कि क्लिनिकली ही डायग्नोस हो सकता है इनिशियली और अल्ट्रासाउंड और कुछ भी डायग्नोस नहीं कर सकता, उस मदर को वो अल्ट्रासाउंड करा कर आई, एमआरआई करा के आई और एंडोमेट्रियोसिस नहीं दिख रहा, बट क्लिनिकली वो एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स बता रही हैं मुझे। अगर मैं उस मदर को कहूँ कि आपकी 17 साल की बच्ची के पीरियड बंद करने हैं जब तक कि वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती, वो 28 साल में अगर शादी करती है तब तक 17 से 28 साल तक कोई भी समझेगा नहीं इस बात को। लेकिन ये 10 से 11 साल माँ को ये समझने में ही लग जाते हैं कि दिस इज द ट्रीटमेंट, बिकॉज दिस इज अननेचुरल फॉर देम। ओके, और जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट आ जाएगा कि वो खत्म, अगर पीरियड बंद कर दिया तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। और जब तक वो समझते हैं तब तक उनकी फलोपियन ट्यूब और ओवरीज डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और चलो वो तो खुश नहीं होता कि फर्टिलिटी नहीं है, मैंने मान लिया कि मुझे नहीं करना, देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स टू हैव बेबी, मगर बच्चा महीने दर महीने इतने पेन में रहता है कि वो एक टाइम पर आके 30 इयर्स की एज पे आके कहता है मुझे सब कुछ निकाल दो। ये ट्रॉमेटिक है, दिस कैन बी ट्रॉमेटिक फॉर योर लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। यूरिन पास करने में कांस्टेंट पेन है, पॉटी करने में कांस्टेंट पेन है, पूरा टाइम पेल्विक एरिया में आपको पेन हो रहा है, हर वक्त आपको एक क्रॉनिक पेल्विक पेन है, तो वो एक सेंसरी सिस्टम भी स्टिमुलेट हो जाता है। और आपको पहले जो पेन सिर्फ पीरियड के कुछ दिन पहले और पीरियड के कुछ दिन बाद और ड्यूरिंग पीरियड्स हो रहा था, अब वो थ्रू आउट demand. So ma'am, I wanted to ask you, like I have many clients with endometriosis and of course with lifestyle changes, medicines have stopped now, like they're getting periods regularly and it took a lot of time. Like one of my clients, she was into painful this thing and consistently usko 1 से 1.5 साल लग गया to reach here. But the only point was I told her that you have to show up every single day in the sessions. You can't think कि 1-2 महीने हो जाएगा. So as per you, what do you think is the reason for endometriosis? Like, is it the lifestyle factor or something else as well? See, we can till now nobody is able to guess. इतना रिसर्च चल रहा है, 5 पॉइंट्स बनाए गए, इन्फ्लेमेटरी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, रिट्रोग्रेड फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड हो सकता है, बट अभी तक कुछ कंक्लूसिव नहीं आया है। इसीलिए जैसे आपने कहा कि लाइफस्टाइल चेंज, एक्सरसाइज, सो मेनी अदर थिंग्स, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, क्योंकि हमारे पास इन एलोपैथी वी हैव hormonal therapy only and many people would definitely go against it. होम्योपैथिक पर चले जाएंगे, आयुर्वेदा पे जाएंगे, और मैं सभी पैथीज की पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ कि अगर उनके पास इसका कुछ इलाज है तो प्लीज करिए, आपके पास है तो प्लीज करिए, हमारे पास तो सिर्फ हार्मोनल। All I focused on this client was, I'll tell you, we started with the basics initially, like उसका mobility पे focus किया, उसको breathing exercises कराई, and then I put her under strength training. तो मैंने उसको slowly सिखाया that 1 kg 2 kg dumbbell से हमने शुरू किया, regulating it with the breathing. Initially ऐसा भी हुआ कि जब वो lunges और squats करती थी तो उसको spotting शुरू हो जाती थी. She used to tell me in the session only कि, then I used to tell her, okay, stop. But I only told her one thing, कि you have to stay consistent. Even if you want to stop the session in between, I'll stop it for you, but you have to show up every single day. And she showed up every single day and now she's here.
So Yeah, very so- happy for her. I think that That's so that good, source huh? of discipline that you get from your lifestyle from the RP, and Yeah. that is what the mothers also need at times, because this pattern breaks. Life इतनी turbulent हो जाती है when you get into pregnancy. You for even first time mothers especially, ये आपने कभी नहीं experience किया है, तो सारे routine, सारे आपके habits सब इधर उधर हो जाते हैं. तो you need discipline to slowly get back to life and start forming those Like things. मैम said ना कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर करो, एक बंदा खोलो, घंटी बजाए और वो आए. बिल्कुल. Otherwise, आप सोचते ही रहोगे. ना, It will बिल्कुल, just बिल्कुल. procrastination will keep on happening. I see all the parents in this stage of procrastination for the longest of time. हमारे साथ ही होता है. एज अ डॉक्टर आई नो कि मुझे करना है, ठीक है. मेरी ट्रेनर हफ्ते में 4 दिन आती है. जिस दिन वो छुट्टी कर लेती है उस दिन मैं 2 घंटे तक चाय पीती रहती हूँ. और वो मुझे पूरा रूटीन बना के देती है. आज मैं नहीं आ पाऊंगी, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और 1 घंटा. और मैं सोचती नहीं हूँ होता. oh my God, पूरा 1 घंटा मेरे पास खाली है, तो आई जस्ट टेक अनदर कप ऑफ टी और मेरी बुक लेके बैठ जाती हूँ. Also, one thing like I wanted to point out, ma'am, I've noticed this, these problems which people come to me, even the young girls, 15, 16 years old, anyone who has been doing physical activities, जो बचपन से इसके parents ने उसको sports वगैरह में डाल रखा है, I don't know, nobody like that has come to me with these problems. Only the young girls and women who are leading a sedentary lifestyles, eating junk food and are under high stress levels, they are the ones with the problems. मस्ट बी सिटिंग जॉब्स इतनी हो गई हैं, और बच्चे ज़्यादातर टाइम जो खेलते नहीं हैं और वो Computer स्क्रीन and all, पर yes. Screen कर पे रहे रहते हैं, हैं. उन्हीं में ज़्यादा होगा. और फिजिकल एक्सरसाइज अगर, तो अभी तक भी तो ये अचानक से एपिडेमिक कहाँ से आया? एपिडेमिक आने का कुछ तो रीज़न होगा. अभी हमारी मदर्स को क्यों नहीं था एंडोमेट्रियोसिस? मेंसेस तो उन्हें भी आते थे, हमें भी आते हैं. अभी की यंगर जनरेशन को क्यों हो रहा है? सो एज यू आर सेइंग, इट माइट बी राइट कि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है और सारा टाइम वो काउच पर बैठे रहते हैं. I think this should be somewhere in schools or in families as a way of life ना. जैसे आप डिसिप्लिन अपने बच्चे को सिखाना चाहते हो, या मैनर्स सिखाना चाहते हो, एटिकेट सिखाना चाहते हो, फिजिकल वर्क शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. कि आपको 16-17 तक पढ़ाई तो कर ही रहे हो, बट यू शुड ऑल्सो प्ले सम, एक स्पोर्ट सेलेक्ट कर लो एंड जस्ट प्ले इट, जस्ट हैव फन विद इट. एंड कोई जीतना नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, बट जस्ट मेक इट योर हॉबी, क्योंकि दैट रूटीन विल लेटर हेल्प यू इन लाइफ. आप देखो प्रणव, ये आप किसको सिखा रहे हो? टीनेज तो मानेगा नहीं बात, ठीक है. छोटे बच्चे जब वो सीखने के टाइम में होते हैं, तब जब वो आपसे बात करना चाह रहे होते हैं, तब आप बिजी हो, और बिजी होते हैं और आप अपना मोबाइल उन्हें पकड़ा देते हैं कि चलो ये कर लो. और जब वो आपसे बात करना चाह रहे थे, आपने मोबाइल पकड़ा दिया. अब वो जब 8th में आए तो उनके पास मोबाइल था ही, और अब वो पीयर प्रेशर पे, अब वो चेंज हो गई. अगर अब आप उनसे कहेंगे तो वो उस लिसनिंग वाले मोड में तो है नहीं. तो अब आप गेम खेलो, ऐसा आपने क्यों नहीं खिलाया गेम? आप उनके साथ बैडमिंटन खेलने क्यों नहीं गए? आप उनके साथ जब हम, या फिर ऐसी सोसाइटी में है कि हाँ, जहाँ की पिट्ठू फोड़ हम लोग खेल रहे हैं या है ना, बचपन के वो गेम्स खेल रहे हैं. अभी आप अगर सोसाइटी में भी देखें तो बच्चे ज़्यादातर जब भी इकट्ठे एक साथ, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, जब नीचे आते हैं तो सब अपने मोबाइल लेकर आ जाते हैं. Right. एंड देन दे अगेन. That is where my next question comes in, around nuclear families and joint families. Is there a difference in the like the pregnancy that goes through in a nuclear family and a joint family, and the kids that are raised in these families? Are you seeing the difference? So, like, if I speak about my pregnancy, I was alone in my first pregnancy. My husband was not even posted with me. Not even the COVID, like it is 2014. So I was alone. I was in the Indian Army. I stayed alone. So I requested for a transfer of my husband with me, which took a lot of time. So it was a turbulent time. All I did was like crying and everything. Second pregnancy, also we were posted somewhere else, and my family couldn't stay with me. But the best part is कि जब मैं उनके पास गई pregnancy के बाद, so I realized that I needed my mother-in-law. I required my mother. अभी भी अगर बच्चों की बात करूँ तो because of our postings, we are currently in Gurgaon. तो बेस्ट पार्ट क्या हुआ है कि हमारा जो घर अभी फरीदाबाद में, माई मॉम एंड माई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बोथ स्टे इन फरीदाबाद. लकीली वी गॉट दिस पोस्टिंग नियर बाय. मैंने इतना रिमार्केबल चेंज बच्चों में देखा है, बिकॉज एवरी सैटरडे संडे वी टेक देम टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स. अकेले में ऑफ कोर्स, जैसे वी वर डिस्कसिंग राइट नाउ, वो होता है एक लेवल पे आप पहुंच जाते हो, जब काम कर रहे हो, अच्छा ठीक है फ़ोन देख ले, टीवी देख ले, है ना. दो वी हैव अ गुड सोसाइटी, आई लेट किड्स प्ले. When I do workout, kids do workout with me. They are watching both of us. We go for running. We take them for trek outside. So my kids are physically active. बट दादी के घर में जाके वो बात ही अलग है. वो फोन याद भी नहीं करते क्या होता है. Correct. उनको याद ही नहीं आता कि टीवी भी कुछ है. दे आर मिंगलिंग अप विद एवरीवन, देयर कजिन्स,
Yeah. सबके साथ. तो आई थिंक जॉइंट फैमिलीज. I think that is very, very important. बिल्कुल बिल्कुल जॉइंट मेरा भी यही मानना है कि कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं आपको जॉइंट फैमिली में रहने के. न्यूक्लियर फैमिली में शायद इंडिपेंडेंस भी ज़्यादा है और इंटरफेरेंस भी नहीं है, मगर अगर आपको एक फैमिली बनानी है, बढ़ानी है और बच्चे पैदा करके और बच्चों को बढ़ाना है, तो इट एज सेइंग गोज कि इट टेक्स अ विलेज टू ग्रो अ चाइल्ड. तो वो अगर आपके दादी नानी के साथ है तो एब्सोल्युटली देयर इज एब्सोल्यूट डिफरेंस. मेरे बच्चे दोनों ही दादी नानी दोनों ही एक साथ थे. देयर वाज वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन माय मदर एंड माय इन-लॉज एवरीबडी वाज स्टेइंग इन द सेम हाउस. और आज की डेट में जैसे आपने कहा, मैं तो मेरे दोनों कॉलेज में हैं बच्चे, बट आई सी दिस डिफरेंस कि वो सुबह जब फ़ोन पर भी बात करते हैं तो गुड मॉर्निंग नहीं होता है. अगर नानी जय श्री कृष्णा बोलती हैं तो वो होता है, और दादी राम राम बोलती हैं तो वो होता है. और ये बहुत इंक्लूसिव वाली एक फीलिंग होती है कि बड़ों उन्होंने खा लिया कि नहीं, उनको सीढ़ी से उतरने में मुश्किल है तो Empathy empathy comes आती in. है. Yeah, right. हाँ, it is very हाँ. good. The more they meet the elderly people, वो हाँ. empathy वहाँ से सीख रहे हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. वरना otherwise we are raising a generation of screens, kids with screens, and we are seeing a lot of this problem also. I personally feel because of a selfish interest. Nuclear family is a selfish interest. कि आपको intervention कम चाहिए, आप work में busy हो, आप और चीजें नई family की कर सकते हो, so you want to live isolated. But I think eventually it is going to hit you back later when the kid grows up, बिल्कुल. and you will regret कि मैंने उस time पे एक selfish decision लिया था. But maybe with the societies, the good thing that I find with the high rise society is that कि बहुत सारे बच्चे मिल सकते हैं. हाँ ये है. At least maybe you can have, क्योंकि अब we cannot completely go back to the ancient times. The economy is growing, the life is getting difficult, so both the parents are working. तो उसके साथ I think we have to find these ways of or these hacks to give an ecosystem to the kid. Also at this point I think what matters is parents की क्या habits हैं, क्योंकि बच्चा हमसे सीख रहा है. तो अगर हम too much of phone या laptop पे हर वक्त बैठे हैं, kids are seeing this. But if we also have a routine कि okay हम phone देखेंगे, laptop देखेंगे, but सुबह जल्दी उठ के हम walk पे जाते हैं, या घर पे trainer आ रहा है, वो देख रहे हैं अच्छा मम्मा exercise कर रही है, पापा exercise कर रहे हैं, they're making healthy choices कि अच्छा let's eat lots of vegetables. आप खुद पिज़्ज़ा खा रहे हो या आप अपने फ्रिज को आपने चॉकलेट से स्टैक कर रखा है, and then you're expecting your kids will not have chocolate. How is that possible? आपको रखना बंद करना पड़ेगा ये चीजें. If there are fruits in the fridge, they will eat fruits. If there are chocolates, they'll eat chocolates. And you have to have this routine. Like I have started done with my kid कि हम सुबह उठ के कभी नेहरू पार्क जाते हैं साइकिलिंग करने, कभी we are forming different kind of habits कि वो outdoor ज़्यादा सीखे चीजें. And I think we also had a child psychologist recently on the show, and she mentioned that a lot of later stages traumas and things come in very early in life, when the kids are seeing fights at home or they are seeing neglected behavior from parents. They have this attention seeking ADHD things at different places in their life. So वो कहीं ना कहीं वो that bubble bursts. So we have to be very cautious and aware कि, and maybe that knowledge is needed. That is why we are working on this awareness that proper channel, that जो नए parents है, okay आप nuclear family में बनो, आप new cities में बन रहे हो, that is fine, but maybe find the right channels to find the right education for yourself. बच्चे को तो education आपसे ही आना है. Right. You have to be educated first कि आपके बच्चे का lifestyle improve हो जाए. बिल्कुल सही कहा कि बच्चे तो आपका रिफ्लेक्शन होते हैं. तो अगर आप अपना रिफ्लेक्शन जैसा रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं वैसा उसे करना पड़ेगा. नहीं तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड बच्चों की लाइफ हो जाती है. अगर न्यूक्लियर फैमिली है और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, और psychological behaviors later they show up in life. We'll now get to the discussion of pregnancy, and Ritu will begin with your experience of the pregnancy and how it changed your career path. Okay, so I am a lawyer by profession, and I was in the JAG branch, the Judge Advocate General's branch of the Indian Army, Okay. like court marshalling officers handling the legal matters of Indian Army. And I think my pregnancy changed the whole trajectory for me. And like we say now, I always tell this thing to everyone, and I realized it later that motherhood doesn't just end कि जब आपने बच्चा पैदा हो गया आपका. It's like a marathon. I'm still running it. My elder one is 10, my younger one is 5. मैं अभी भी भाग रही हूँ, मुझे लगा है शायद मैं भागती रहूँगी till the time they get settled or something. Yeah. No, So- they are not going to settle. Yeah, so I'm going to run this marathon. So my kids are grown up, they are in college, and I don't think there is
इवन अ सिंगल मिनट रेस्ट टू योर माइंड कि Hmm. आपका बच्चा जो है वो कॉलेज में आराम से होगा, आपका Hmm. दिमाग हमेशा वहीं रहता है। एंड मैं ये भी कहूँगी कि आपकी जो एज है, आई डोंट नो, आई एम 50+, मेरी माँ आज भी फोन करके दोपहर को मुझसे पूछती है खाना खा लेगा क्या भाई, आई एम 50, ओके, मैं हॉस्पिटल में हूँ, कैंटीन में खाना खा लूंगी, बट शी I लाइक know. खाना नहीं लेके गई तुम, खाना खा लिया क्या? Hmm. तो माँ बाप जब तक माँ बाप हैं तब तक आपका वो मतलब खत्म नहीं होता है, circle- रिस्पॉन्सिबिलिटी circle खत्म चलता नहीं होता I रहेगा। है। think so. So we have to keep running it forever. So when the pregnancy happened, my husband was not posted with me, and like first time pregnant, under pressure कि family चाह रही है कि you should have a child now, and उसके बाद क्या हुआ कि किसी ने educate नहीं करा. Okay, it's a flary thing that you become a mother. I was excited. Okay, I'll have a small baby with me. I'm going to become a mother, and me and my husband were excited. But किसी ने ये नहीं बताया 3 महीने nausea होगा, vomiting होती रहेगी, बहुत बुरा हाल हो जाएगा. ठीक है, आई लिटरली डोंट रिमेंबर ईटिंग एनीथिंग फॉर 3 months. शायद कुछ खाया ही नहीं, और मेस में रहती थी उस टाइम पे, ऑफिसर्स मेस में, बिकॉज सिंस आई वाज सिंगल ऑफिसर तो मैंने घर नहीं लिया था, तो ऑफिसर्स मेस में आई वाज स्टेइंग. एंड उसके बाद इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस वो 3-4 महीने मेरे गए जब तक मेरा नोजिया ख़त्म नहीं हुआ, दैट आई रियलाइज ओ माई गॉड, ये प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ फ्लारी केक वॉक टू वॉक ऑन. और उसके बाद जब तक हस्बैंड का ट्रांसफ़र मेरे साथ नहीं हो गया, इट वॉज, आई थिंक माई depression symptoms started with the loneliness when I was pregnant. And pregnancy के बाद, जब when I delivered my child, I was very excited to have my child in my lap. But the moment the doctor gave my child, and everybody was telling, she looks just like her father, just like his father, I had this anger and rage inside. I can't explain this. We are laughing about it right now, but उस time पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था that for you, I've kept you 9 months. I was staying alone, and now everybody says that you look like your father. एंड देन माई मदर ने कहीं से बोला, नहीं नहीं, जब ये छोटी थी इसको ऐसी लगती थी, तो मुझे लगा हाँ तो मेरी तरह लगती है. I think the mothers do face this. So and All the time, I'm all the time. serious, and I'm serious about this, like literally अभी जैसे we can joke about it. मेरे को I started hating my husband. I can tell you from my own experience. मैंने इस चीज को मैं सुन के इधर से निकाल देता था. I never acknowledged it, क्योंकि मुझे पता था मैं acknowledge कर रहा हूँ तो मेरी आंखों को गुस्सा आएगा. मैं इसको ना सुन के करके निकाल देता था. मैंने कहा इस पे अंदर ही खुश रहो, इससे बाहर खुश होना ठीक नहीं है. So what was your like wife's experience in this? It was like with her, it was that we enjoyed that time. Luckily, it was COVID, and पूरा एक void हमारे पास था in which she could experience a lot of like we had. हम घूमने भी गए, हमने थोड़ा बहुत एक विंडो मिला था जब खुला था कोविड, पर हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. उसने कुकिंग भी किया. she learned पूरा लाइफ में. she never knew cooking. she in pregnancy she could learn, and she was excited to eat a lot of things. तो बहुत अच्छे से टाइम वो सब गया. But this thing definitely happened being a baby boy, and अगर मतलब everyone has a feeling कि लड़का है तो मम्मी पे दिखेगा, लड़की है तो पापा पे दिखेंगे. सबको ये normally conception है. अच्छा. अब he at times was looking like me, at times was looking like her. तो मुझे याद है मैंने ये चीज़ सुननी एक्सेप्ट करनी, बताने का नहीं मेरिया जैसा ही दिख रहा है, नहीं मेरिया जैसा ही दिख रहा है. So because it does happen to a mother, because once they are going through this period, चाहे वो 9 महीने आपके बहुत अच्छे गए हैं, चाहे आपके बहुत आइसोलेशन में गए हैं, for a mother it is an incubation and a lot of work. मतलब father is a part of the journey. I was a part, I was helping her out, but I can never say I had that experience, क्योंकि that is a female's experience, that they know कितना difficult है. I still remember I was inside the operation theater when ma'am was doing the operation, as in she had the natural delivery, but मैं वहाँ पे खड़ा था, and मेरे parents were like कि तू बाहर आ जा, बेहोश हो जाएगा. Because they were scared. Although my father is a doctor, but they were like कि ये इतना मतलब बोल्ड नहीं है, उनको लगता था. बट आई वाज लाइक नहीं, आई विल बी देयर. सारा कुछ मैंने देखा, सब कुछ किया. बट आई नो मेरिया जब बेड पे थी, what she went through and what a mother goes through is very very different. It's life changing. But Pranav, would you agree on this point that having your spouse with you during your pregnancy will make a lot of difference, like family supporting you? Like मैम जो आपके पास आते हैं तो I'm sure husbands visit नहीं करते, कुछ लोगों के कुछ के करते हैं, like बहुत सारे कोई करते हैं. करते हैं. आजकल के बच्चे जो हैं मतलब बड़े क्लियर हैं इस बात में कि भाई ये हमारा कलेक्टिव है और आपको आना ही है. और हस्बैंड्स आते हैं. इनफैक्ट आई फील रियली अमेज्ड एंड सरप्राइज, क्योंकि मेरा हस्बैंड दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे साथ कभी नहीं था. happened with me first time. तो मुझे और एज अ डॉक्टर मुझे कभी लगा भी नहीं कि उनकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि मुझे पता है क्या करना है. बट हाँ, आजकल इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड
हैं husbands और partners and I like it. और मुझे मज़ा आता है जब वो कंप्लेन कर रहे होते हैं अपनी वाइफ की कि ये खाती नहीं है, और फिर मैं देखती हूँ कि 1 महीने में 2 किलो वेट बढ़ गया है। हमने कहा अच्छा खाती नहीं है, बढ़ तो गया। मतलब दे आर कंसर्न्ड, इट्स जस्ट दैट दे आर कंसर्न्ड कि वो ठीक नहीं खाती है, एक्सरसाइज नहीं करती है, तो दोनों की तरफ तो दे आर नाउअडेज आर नाइसली इन्वेस्टेड इन देयर wife's health and kids' health or delivery, or they want to come and throughout labor they stay there, पूरा टाइम encourage करते हैं, though they get all the abusive words. कहावत है ना that a woman never forgets how she was treated during her pregnancy and after pregnancy. Yes. So I think वो support होना is very necessary. I have noticed that in both my pregnancy of how miserable I felt during the first one and how happy, and I was glowing in the second time round. You see that glow. Man. Yeah, first time round I gained 23 kgs of weight. My complexion became of grey color. I don't know, there were some problems, some iron deficiency and something happened. And second time round I was all happy. I think that is very, very important also for the kid, and it is very important for you for the journey after the baby, postpartum also, because I know that postpartum depression is a real thing. It's real. When you deliver the baby, all the attention goes around the baby. It becomes the center of the universe for the family, and suddenly mothers do feel lonely and isolated at times. 80% postpartum blues. 80%. 80%. So like almost every mother feels postpartum blues. Depression is definitely less percentage of female goes into depression. They go but blues तो हर एक को feel होते हैं, और वो blue जो आपने कहा कि सबसे पहली बात कि expectation mother की खुद से कि ये मेरा है, this is my blood, my flesh, and I have to take care of this. How to take care? ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, इनफ नहीं है, बच्चा रो रहा है, कैसे उसको चुप कराना है, पैसिफाई कैसे करना है, और उसके अराउंड जो आपका सपोर्ट सिस्टम है वो कई बार उतना आपके मुताबिक नहीं होता. जैसे इफ़ यू वांट देम टू सपोर्ट बट दे आर टेलिंग दैट योर ब्रेस्ट मिल्क इज़ नॉट इनफ, और इफ चाइल्ड इज़ क्राइंग एंड समबडी इज़ नॉट पिकिंग द चाइल्ड थिंकिंग के नीचे रहने दो, रोने दो, अपने आप चुप होगा, मगर माँ रुलाना नहीं चाहती बच्चे को, वो कहती है उसको उठा लें. तो बहुत सारी चीज़ें, ये कॉन्फ्लिक्ट सब आते हैं कि नहीं आप नीचे सुला दीजिए बच्चे को, और जब रोएगा, जब उसको भूख लगेगी. लेकिन एक मदर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम अ गर्ल टू मदर, शी वांट्स कि ये मेरा है और इसको मुझे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना है और लव करना है. Is it like that natural instinct of possessiveness and insecurity, the animal instinct comes in? हाँ, Is it? बहुत. It does. अगर वो है ना, बिल्कुल आप फील करने लगते हैं कि वो आप ही को उसको केयर करनी है. तो आप बच्चे के फादर को, अपने फादर को, अपनी मदर को भी उतना ट्रस्ट नहीं करते अगर वो बच्चा उठाते हैं. The trust issue comes in. I think like we've heard stories of an elephant mother. They're so possessive over the kid कि they will just, वो बोलते हैं ना कि जंगल में हाथी और उसका बच्चा दिख जाए पास मत जाना. बिल्कुल. Like literally I had fights with my mother telling me तुझे मैंने ही पाला है. हाँ. So why are you getting so possessive? मैं ठीक से कर लूँगी. This always pops out these days. Yes. How? So I like मेरे को अपनी मदर से भी कंसर्न होते थे. मम्मा उसको ऐसे मत पकड़ो वैसे. She got so frustrated. She like तुझे मैंने ही पाला है. So why are you so concerned? I'll take care of your baby as well. So हार्मोनल तो comes. होता ही उस वक्त कि आपके जो इतने 9 महीने से जो आपके हार्मोन्स है वो एकदम ड्रॉप हो गए, और आप वो एक ब्रेन में जो कनेक्शंस हैं वो उस हार्मोन से, मतलब दे वर अकस्टम्ड टू दोस हार्मोन्स, अब खत्म हो गए, तो आप उस डिप्रेशन में चले जाते हैं. फिर आपके ब्रेस्ट में पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ फुलनेस, बिकॉज ऑफ निपल, क्रैक निपल, एपिजियोटमी है अगर नीचे, या सिजेरियन स्कार है उसमें दर्द हो रहा है, और बिकॉज यू हैव टू फीड योर बेबी, आप नेचर की कॉल को अवॉइड कर देते हैं, उसको नहीं जाते, तो कॉन्स्टिपेटेड हो रहे हैं, फिर फिशर हो जा रहा है, इतनी सारी चीज़, स्लीपलेसनेस हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हैं अराउंड, एंड समटाइम्स हस्बैंड्स आर नॉट एबल टू डू व्हाट, आई डोंट नो क्या वो एक्सपेक्टेड है आपसे, मुझे वो भी नहीं पता. मुझे वो कंफ्यूजन में रहता है. इतना कंफ्यूजन है कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी नहीं. भाई आप फीड करा नहीं सकते तो आप सो भी क्यों रहे हैं, बिल्कुल. आपको सो तो Dilemma में रहता है. There's a lot of dilemma कि how do I act like being there all the time and not act like as in she feels good.
क्योंकि आपको पता नहीं है करना क्या है। करना क्या है। कई बार द मदर नोज इंस्टिंक्टिवली अभी ये होना अभी वो होना, इसका मतलब ये, एंड द फादर इज कंफ्यूज्ड कि मैं चलो कल सीख जाऊंगा, शायद परसों सीख जाऊंगा, थोड़े टाइम में सीख जाएंगे। Ears start ringing. Like I remember जैसे बच्चों को सुला के whenever we sitting together हाँ। एक साथ, तो अगर वो दूसरे रूम में, रूम बंद है, you can still hear, okay, कोई रोया. एकदम से वो And क्लिक it's करता right. है। You go there and the child is crying and the father won't come to know. तो मदर की कॉर्ड नहीं कटती ना तब तक वो Right. कभी नहीं कटती है। वो जब बच्चे कॉलेज भी चले जाते हैं ना, इफ दे आर नॉट, अगर वो सैड हैं तो आपको तब भी पता चल जाता है। आई डोंट नो वो उस इंट्यूशन आपको कभी लगी है आपकी कि आप कभी सैड हैं तो आपकी माँ का कॉल आ जाएगा कि बहुत बार सब हुआ ठीक है। यस यस, अभी भी होता है। They मदर get to की know. है ना, तो आप छुपा नहीं पाओगे फोन पे भी, बिल्कुल। उनको पता चल जाता है। Now one So, question to you. हम्म, Do you think motherhood should be hyped? Like why I'm asking this is like it is very generalized. हम्म, Like मैंने ऐसी बातें सुनी है कि तूने कौन सा बहुत बड़ा काम किया है, अच्छा। हमने भी 7-8 बच्चे पैदा हाँ, किए हाँ, हैं. So don't like मेरे clients भी मुझे बातें बताते हैं that they were not given that support and it was so generalized that no one educated them कि आपको you know you have to be prepared कि आपकी body में changes आएंगे, you have to be prepared that it will be a painful process and it's not an easy process to give birth to a child. So do you think that it should be hyped in order to create awareness? Because I feel that both men and women in today's scenario have to be prepared for it mentally and physically both. ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या प्रेगनेंसी हाइप होनी चाहिए या अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज में है हम लोग, हमें पता नहीं है। और जैसे आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ कि फर्स्ट टाइम वंस यू वर प्रेग्नेंट तो आपको बहुत खुशी मिली इस बात की कि यू आर प्रेग्नेंट एज अ कपल, बट प्रेगनेंसी के 9 महीने में क्या सिम्टम होने वाले हैं, आपको नोजिया हुआ, किसी और को कॉन्स्टिपेशन बहुत सिवियर हो जाता है, बैक एक है, या बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं, स्लीपलेसनेस है, या एक सिंपल एंग्जाइटी है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं होंगी, मैं ठीक से खाना नहीं खा रही, मेरी बेली उतना ग्रो नहीं कर रही है जितना होना चाहिए, क्या मैं ये एक्सरसाइज कर सकती हूँ, क्या नीचे बैठ सकती हूँ, क्या झुकना अलाउड है, क्या ड्राइविंग ठीक है। देयर आर सो मेनी मल्टीपल क्वेश्चंस एंड वी डोंट हैव आवर पेरेंट्स टू आंसर एवरीथिंग। और अगर आप एक माँ बाप के साथ रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली में है, तो वहाँ पर एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का सिनेरियो होता है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि ठीक है प्रेग्नेंट ही हो, हम भी प्रेग्नेंट हुए थे, सारे काम किए थे, आप भी सारे काम करो, उसमें मतलब खाना क्यों नहीं खाया जा रहा, खाना तो खाना ही है, दूध तो पीना ही है, घी तो खाना ही है, लेकिन आपकी उस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, घी आपको कभी अच्छा नहीं लगा, दूध आपसे नहीं पिया जा रहा, तो बहुत सारे अवर्जन होते हैं, फूड अवर्जन होते हैं जो आप नहीं खा पाते, बट यू आर एक्सपेक्टेड कि आप वो सब कुछ करें जो कि आपकी मम्मी या आपकी सास या आपके बड़े लोगों ने किया था। तो प्रेगनेंसी को या तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, और या फिर हमें बिल्कुल ही नहीं पता कि हमारे साथ 9 महीने में क्या होने वाला है, और ईच एंड एवरीथिंग ईदर यू आर गोइंग ऑनलाइन टू सर्च के क्या कर सकती हूँ, या फिर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और कभी कभी आपके डॉक्टर भी नाराज़ होते हैं कि अगर आपने कहा कि क्या मैं झुक जाऊँ, क्या मैं आगे बेंड हो सकती हूँ, एंड डॉक्टर बोल क्या बात कर रहे हो यार, बेंड तो हो ही सकते हैं, तो ड्राइविंग, बट दीज क्वेश्चंस आर नेचुरल टू कम, राइट। अगर आपको 10 आपकी दोस्त प्रेग्नेंट है या 10 अराउंड योर ऑफिस आर प्रेग्नेंट, एवरीबडी इज टेलिंग यू अ वेरी डिफरेंट थिंग। कोई कह रहा है पपाया नहीं खाना, कोई कह रहा है ड्राइविंग नहीं करना, कोई कह रहा है सेक्स नहीं करना, कोई एक और कुछ फ्रूट या कुछ को भिंडी, मतलब मेरे पास इतने डिफरेंट तरीके के सजेशंस आते हैं कि यह कर सकते हैं, एक ही करवट लेके सोना है, लेफ्ट साइड ही सोना है, सीधा नहीं सो सकते हैं, और बिल्कुल भी एक्सरसाइज फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं करना, या बेड रेस्ट है बिकॉज ऑफ अल्ट्रासाउंड इज शोइंग सम लो प्लासेंटा एंड ऑल। सो देयर सो मेनी मिसकंसेप्शंस, बहुत सारे मिथ हैं। हमें प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल भी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए। हम लोग पूरे 9 महीने कई बार बिना एक्सरसाइज के चलाते हैं, देन वी आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर नेचुरली वजाइनली, है ना, और प्रिपेयर हमने किया नहीं पूरे 9 महीने, और फिर क्योंकि प्रिपेयर नहीं किया, लेबर क्या है, किसी ने लेबर नहीं सिखाया, किसी ने पार्टोग्राम नहीं बताया, कितने घंटे की लेबर होने वाली है, 36 आवर्स भी लग सकते हैं, 48 आवर्स भी लग सकते हैं, बट यू नेवर थॉट कि इतना लंबा लेबर होगा, वो सब किसी ने नहीं बताया। एपिजियोटमी में कितना पेन होना है, आप तशरीफ अपना रख नहीं पाते हैं, 6 हफ्ते तक आप ऐसे टेढ़े टेढ़े होकर बैठे रहते हैं क्योंकि नीचे एपिजियोटमी, बट नोबडी टोल्ड यू
ये सब बात। और ब्रेस्ट फीडिंग कितना डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग आपको अगले दिन से ब्रेस्ट फीड आ जाएगा ऐसा नहीं है। तो आप तीसरे दिन से ब्रेस्ट फीडिंग आ रहा है, ब्रेस्ट सोरनेस हो रही है, आपको 24/7 बच्चे को लेकर बैठना है, तब जाके ब्रेस्ट अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क आएगा। वो सब कुछ किसी ने बताया आपको कि स्लीपलेस नाइट्स होंगी आपकी, अगले 3 महीने तक आप बिल्कुल ही नहीं सो पाएंगे, आप लेट भी नहीं पाएंगे, आप बैठे बैठे ही पिला रहे हैं उसे, वो कुछ कोई नहीं बताता। तो हम लोग जो भी फोटोशूट करें या बेबी मून पर चले जाएं, मगर ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो किसी ने This should be highlighted. This should start getting highlighted. I also feel why, because I can personally see this in my peer groups. When we are moving into nuclear families, we are moving away from the whatever wisdom we were getting from the ancestors, from the people that we were living closely in the society with. दूसरा Google search and a lot of search mechanism is coming in कि आप खुद से ढूंढ रहे हो, and these search can be random at times. These are not very specific. So we are getting very, very confused. So I think that right amount of information from an influential group of people. Why? Because we today's time information is the thing that is teaching you a lot of things. So that information around pregnancy should come up, because if that can move masses, that can move the next generation, and that is how the political system should also support this thing. Why? Because if the what is the aim of a political system or a business is to make a thriving nation. Thriving nation is not just businesses, it is the next generation which will be first consumers and then entrepreneurs and business leaders. If that is getting ruined, if that is not being worked on, then 20 years down the line your system will definitely fail. There's no way it will survive. बच्चे आजकल के बहुत सारे couples, they do not want to conceive, they don't want Yeah, they children. don't want, right. They're scared, they're They're absolutely The scared. dogs are the kids these days. That is a slightly wrong perception that is coming in. People are saying the pet animals are their kids now. So that is something which is coming in कि बच्चे हमें करने नहीं है, थोड़ा बहुत वो that culture is popping up in the side. It is. I think preparedness is very necessary. So when I was serving in the army, this is one thing जो मैंने सीखी कि हर चीज़ के लिए prepare रहो. Plan A, B, C. So when the war is there, you're already prepared. Even if you are at a peace area and something comes, you're still prepared. So even for pregnancy, I always say that prepared नहीं है इसलिए ज़्यादा परेशानी है. So for me, मैं prepared नहीं थी first time around, इसलिए all the problems came to me like rushing, and it was so hard. So I always say कि जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ना, मैं बोलती हूँ कि भाई इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग 11 महीने बहुत टफ थे, बट मेरे लिए 9 महीने प्लस डिलीवरी उसके इक्वली टफ था, बिकॉज ऑफ नॉन प्रिपेयर्डनेस. Yes. बिल्कुल. स्लीपलेस नाइट्स इक्वली. My first pregnancy I was just 22. Okay. उस वक्त तो मतलब एक्सीडेंटल हो गया, और it was really tough. Labor was tough. Nobody was allowed inside. I was in government hospital doing my internship. एंड इट वाज, सी वही मैं पहले भी प्रणव को कहा, मैं उसी पॉइंट पर डिवोर्स मांगती हूँ हर बार हस्बैंड से कि आप लेबर रूम में भी नहीं आए, आप डॉक्टर थे, यू वे पीडियाट्रिशियन, मैं लेबर में थी 36 आवर्स एंड ही वाज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ हिज व्हाटएवर एचओडी डिडंट अलाउ. तो मगर ये एक पॉइंट बहुत बड़ा है कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे उस तरीके के पेन के लिए, उसके बाद प्रिपेयर नहीं थे उस तरीके की स्लीपलेस नाइट्स और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए. सो आई डिड नॉट एंजॉय माई फर्स्ट प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी, दो आई लव्ड माई डॉटर बिल्कुल इस तरीके से कि आई नेवर वांटेड टू लीव हर, बट आई एंजॉयड माई सेकेंड प्रेगनेंसी आफ्टर 9 years बिकॉज आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड कि इतनी नींद नहीं आनी है, बिल्कुल ही नींद नहीं आनी है, और मैं तैयार हूँ. अब मैं मतलब आई हैव पुल्ड माई सॉक्स अप, ये वाली प्रेगनेंसी को एंजॉय करेंगे, इसमें ब्रेस्ट फीडिंग तो उसको कितने भी 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना. एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिड नॉट नीड एनीबडी, मेरी मदर, मेरी मदर इन लॉ, हस्बैंड, सबसे, क्योंकि तब तक मैं बहुत मैच्योर हो चुकी थी, मुझे पता था कि एक बच्चा पालना क्या है. आई न्यू दैट. सो आई थिंक वो जो सब लोग बोलते हैं ना कि ये नई लड़कियों के चोचले हैं, जैसे मैंने बहुत सुना है जब क्लाइंट्स आते हैं तो बोलते हैं कि मैं मदर इन लॉ सेज दिस, लोग ऐसा बोलते हैं, मैं बोलती हूँ कि नई लड़कियों के चोचले नहीं है, इट्स हैपनिंग बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड इफ द गर्ल्स आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द पेन एंड डिस्कम्फर्ट विच इज कमिंग अहेड, आई थिंक मदरहुड इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, very beautiful. I think it should, you both are working in this domain and I'm glad you both are spreading awareness कि at least new mothers can seek this help earlier rather than falling into the trap of waiting for the next pregnancy to recover from this trauma. I think now, because you both are working in this domain, so young girls should at least start preparing themselves earlier if they are
like looking forward to having a baby. If they're looking forward to having a baby, prepare for it. Seek help early rather than seeking help later. And I would like to also, Ritu, ask about your experience when you've been working with the wives of the army veterans, like people from the army, their wives, because they face a lot of loneliness due to the profession also. So how has that experience been? So I have clients who are wives not only of officers but also of jawans. एंड बहुत ही ज़्यादा आई थिंक उनके लिए क्या होता है जब प्रेग्नेंट या पोस्टमार्टम है, तो सबसे बड़ा स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस लेवल जो मैंने भी फेस किया था इज़ यर दैट यू आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम योर स्पाउस. ठीक है, लाइक आई थिंक इट्स लाइक वी आर प्रेग्नेंट, आई एम प्रेग्नेंट नहीं बोलते, सो इट्स लाइक बोथ ऑफ देम आर टुगेदर. सो अ वुमन रिक्वायर्स हर हस्बैंड टू बी विद. उसके अलावा भी क्या होता है, कई बार हस्बैंड फॉरवर्ड पोस्टिंग पे है, फीमेल अपना पीस मतलब पीछे रिटेन कर रही है अपना अकोमोडेशन, घर वाले भी नहीं हैं, गांव में है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बिकॉज आपको एमएच में इलाज कराना है, तो आप मिलिट्री हॉस्पिटल में जब आप अपना डिलीवरी करोगे तो आप गांव में नहीं रह सकते, सो यू आर स्टेइंग देयर, सो यू एब्सोल्युटली लोनली. देन आर्मी की ना कुछ कमिटमेंट्स हैं, जैसे बीइंग अ वाइफ ऑफ अ सोल्जर और एन ऑफिसर, यू हैव टू अटेंड आवर मीटिंग्स, यू हैव टू डू सर्टेन अदर थिंग्स, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम. और इस बारे में अवेयरनेस भी नहीं है बिल्कुल भी. सो व्हेन आई डील विद देम, सबसे पहले मेरे को उनके स्ट्रेस लेवल्स पे काम करना पड़ता है. लाइक हूँ मैं प्रेगनेंसी पोस्टनेटल एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट, बट आई थिंक हाफ ऑफ द टाइम मैं उनकी मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हूँ. I think that is because it has intervened so deeply. It is everywhere. Mental health, stress, anxiety is everywhere in life now. सो व्हेन दे कम फॉर द सेशंस दे फीलिंग ओवरवेल्म. मैम ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. एक्सरसाइज इज बिकमिंग एन एडिशनल स्ट्रेस फॉर देम. वो टास्क हो गया. सो आई ऑलवेज टेल देम कि कोई बात नहीं, एक दिन मिस हो जाएगी, इट्स ओके. सो फर्स्ट प्रायोरिटी विच आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स इज देयर स्लीप. व्हेन द बेबी स्लीप्स, यू स्लीप. सेशन में मत आओ, I'll adjust it for you, मैं आगे कर दूंगी, नहीं काट रही पैसे उसके. I tell them this. So because I understand कि as a coach what I want results from people. वो result आएंगे तब तक नहीं जब तक वो लोग follow नहीं करेंगे प्रोग्राम को. I think you pointed out a really very very important thing in today's time, which is sleep. Sleep. It is a rare commodity these days, and we are competing against sleep most of the time. चीज़ें ढूंढ लेंगे, टास्क ढूंढ लेंगे, and then we are stressed कि नींद नहीं आती है. And I think a lot of issues that you must be also seeing with the mothers and your clients is that कि वो नींद तक आपका ध्यान जाता ही नहीं है. You start keep on blaming on other things in life, but कहीं ना कहीं sleep एक बहुत important part है लाइफ का. हाँ नहीं बिल्कुल, आपका जब तक मेंटल रेस्ट नहीं है, और फिर वो स्लीप इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम में है. स्क्रीन टाइम, या सो लाइक व्हेन आई स्पीक टू मदर से मैं उनको बोलती हूँ व्हेन द बेबी स्लीप्स यू स्लीप. क्या करते हो आप? इट्स माई मी टाइम. तो मैं सोचती हूँ इट्स मी टाइम में नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लूँ, थोड़ा स्क्रॉल कर लूँ. मैं कहा नहीं, दिस इज नॉट कॉल्ड एन प्रोडक्टिव मी टाइम. योर मी टाइम हैज टू बी स्लीप. तो The wrong notion of me time, which you wrong notion of- very rightly. एंड जब बच्चा सो के उठ जाता है देन यू फीलिंग इरिटेटेड. मूवी भी खत्म नहीं हुई, नींद भी पूरी नहीं हुई, बच्चे को भी देखना है, देन अगेन दैट साइकिल स्टार्ट्स एंड इट्स अ लॉट्स ऑफ स्ट्रेस. And I think I want to know both of your perspective, and I want to highlight this to the audience. Does the mental stress of a mother early in life impact on kids? Have you seen that around in your peer groups or in your clients and patients कि अगर mother stress में है, does that somewhere go down the line in your kids? बिल्कुल ही सही है ये बात कि अगर जैसे अभी हमने कहा है कि आपका बच्चा आपका रिफ्लेक्शन है, आप काम हैं और आप डिसिप्लिन्ड हैं और आप हैप्पी हैं, तो बच्चा भी हैप्पी मूड में होगा. आप इरिटेटेड हैं तो बच्चा भी इरिटेटेड रहेगा. तो मतलब किसी और को ब्लेम करने की बजाय you have to look at yourself. देखिए, ब्लेम तो किसी और को करना ही पड़ेगा, हस्बैंड को. आप इरिटेटेड हो, राइट, मेक सेंस. किसी को तो ब्लेम करना है अपने इरिटेशन का, मगर चलो ठीक है, वो भी ले लेंगे. वह प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जैसे अभी ब्रेस्ट फीडिंग पर एक यहाँ एस्पेक्ट अगर लेते हैं कि आपको यू आर एक्सपेक्टेड टू ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड, ओके, और आपके डॉक्टर ने कहा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगा तो बहुत अच्छा है. मगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बहुत मुश्किल है. 24/7 आपको फर्स्ट फ्यू वीक्स देना पड़ता है उस ब्रेस्ट मिल्क को उतना क्वांटिटी में आने के लिए. और 24/7 का मतलब एक्चुअली 24/7 होता है कि आप पिलाते हैं, फिर लेटाते हैं, फिर बच्चा उठ जाता है, सूसू पॉटी किया, फिर पिलाते हैं. तो इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली ओनली वन वर्क इज गोइंग ऑन एंड ऑन. तो अगर आप एग्जॉस्टेड हैं, अब आप सो नहीं पा रहे हैं, आपकी निपल सोर हो गई है, ब्रेस्ट आपको लग रहा है कि अब उतना आ नहीं रहा है, तो फिर ये हो गया कि आप इरिटेट हो गए.
तो आप लगातार 3 दिन अगर नहीं सोए तो आप डेफिनेटली यू वुड से कि ये भाई किसका बच्चा है, ले जाओ, आई डोंट वांट। Yeah, right. है ना, तो अपने बच्चे को भी आप इतना भी क्या, इतना कोई मदर, मतलब मैं कहीं ना कहीं तो वो सर्वाइवल आ जाएगा, अपना खुद का सर्वाइवल आ जाता है। लगता है कि इसको उठाओ और कोई ले जाओ। हाँ, क्योंकि आपको लगता है कि मैं ही डाउन द ड्रेन जा रहे हो। नहीं, आप चाहे आप Energy बच्चे को नहीं बहुत बचेगी। भी प्यार करते हैं ना, आप बहुत भी प्यार करते हैं, तब भी ये बिना स्लीप के ये एक ऐसा सर्केडियन रिदम बन जाता है दैट यू आर एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड, मेंटल आपकी एबिलिटी खत्म हो जाती है सोचने समझने की। तो वहाँ पर हम उनसे ये कहते हैं कि ठीक है, आप थोड़ा सा टॉप फीड देने दीजिए, ठीक है। A happy mom is more important Yes, than a yes, yes. exclusively breastfeeding वो mom. स्ट्रेस में आप डालते जा रहे हो, वो ना बबल बर्स्ट हो जाएगा। I'm glad मैम आप ऐसे करते हो, because I have heard doctors scolding their patients कि आप exclusive breastfeed क्यों नहीं करा रहे हो, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। So I'm so glad कि आप इतना अच्छे से सोच के you're telling them कि it's okay to start top feed. Because that The is what sleep you is are pointing out कि happy mother is better. Happy mothers are very हैप्पी, अगर आपने अच्छा, फिर दूसरी बात ये भी है कि देखिए ठीक है, अगर आज की डेट में आपने एक बार टॉप फीड इंट्रोड्यूस नहीं किया, से आफ्टर 2 वीक्स ओनली यू इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो आप अभी मैं ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि आप पूरे 1 साल बैठ के बच्चे को पालेंगे। ऑफिस तो जाएंगे, कोई 3 महीने बाद शुरू कर रहा है, कोई 6 महीने बाद शुरू कर रहा है। आपने बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी, और मैं मानती हूँ कि अभी कोई पीडियाट्रिशियन सुन रहा होगा तो मुझे शूट कर देगा। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से इम्यूनिटी बढ़ती है, बॉन्डिंग बढ़ती है, बच्चे को एलर्जीज नहीं होती हैं, सब कुछ माना, सब कुछ है। मगर अगर मैंने टॉप फीड नहीं दिया, एक बार उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, और मैंने 3 महीने बाद सोचा कि चलो आज मैं टॉप फीड देती हूँ क्योंकि आज मुझे मीटिंग पर जाना है, तो वो बच्चा फेंक देगा। Same happened with me during my, like I said, 6 months के maternity leave के बाद आई, next day on duty. Now I have to sit in the court for court martial. It was a battle to give top feed to my daughter. Like it was a battle. I was mentally so weak that I was crying कि अब ये बेचारा बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा। और 6 महीने का बच्चा एकदम से solid food नहीं शुरू करता है। It's a transition and it was very tough. फिर मैंने वहाँ के सीईओ वगैरह से बात करके स्पेशल में ब्रेक्स मांगती थी, साथ में एक कमरा बनवाया जहाँ कोर्ट मार्शल था कि इसको रखो, मैं हर 2-2 घंटे में जाके फीड कराऊंगी। इट वाज अ टफ बैटल। I think that is where you mentioned, and it is rightly important, preparation is needed for all the mothers. That preparation is needed because lifestyle is changed now. आप सिर्फ घर पे नहीं रहने वाले हो, आप क्या अपना जॉब छोड़ चुके हो अगर आपने प्रेगनेंसी ली है? इफ दैट इज द केस देन ठीक है, आप सब कुछ ट्राई करो, बट अगर आप वापस जा रहे हो तो यू हैव टू फिगर आउट अ हाइब्रिड मॉडल समवेयर डाउन द लाइन। 80% आप ब्रेस्ट फीड दे दें, 20% पर कर दें। 2-3 हफ्ते बाद जब आपका एक बार बच्चा सकलिंग ठीक से सीख जाता है तब आप उसको दे दें। अभी आप ये सोचें कि आप घर पे बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं और पीछे वाला बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, कटोरी चम्मच ये सब कुछ, और बच्चा थू करे जा रहा है दूध, बच्चा भी तो सफ़र हो रहा है ना। तो आपको ये अब ये न्यू एज प्रॉब्लम समझ लीजिए और न्यू एज सोल्यूशन समझ लीजिए कि ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज एब्सोल्युटली important, but if it is practical, do it. If it is not, then मेक अ हाइब्रिड मॉडल। और you just pump out and maybe feed it from बट वही है कि पंप करके पिलाइए, बहुत अच्छी बात है। वो आपके रूम टेम्परेचर पर भी रखेगा, फ्रीज भी कर सकते हैं। मगर अगर उसके बाद आपने 6 महीने बाद भी सोचा कि बच्चे को कराएंगे दे तो दें, बच्चा एक्सेप्ट नहीं वो एक्सेप्ट नहीं करता है, Right. फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो एक बार का देना वही है कि दिस इज प्रैक्टिकलिटी, एंड आई थिंक पीडियाट्रिशियन वुड नॉट एग्री। No, they will not agree. That is for sure. But I think if a mother's mental health is not fine, you cannot pour from an empty cup. So for that matter, I think not a problem. So it's important. You have to have that happy vibe in the house, and for the mother, for the kid to have that happiness, क्योंकि that is only when you can pour happiness to the kid. जी, पहले ज़माने में बिल्कुल सिनेरियो भी फ़र्क था। मदर्स वेर एक्सपेक्टेड टू स्टे इन वन रूम, फीड द बेबी, ईट वॉट एवर वॉज ऑफर्ड टू देम, खिचड़ी 40 दिन जो भी था, बाहर नहीं जाना, सर ढकना है। और क्योंकि वो जॉब में भी नहीं थे तो ये वो एक्सपेक्टेड भी था, दो वो भी पोस्टमार्टम ब्लूज में जाते थे, मगर क्योंकि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि यही होना है, मेरे साथ हुआ, मेरी जेठानी के साथ हुआ, मेरी ननद के साथ, तो दिस वाज। आजकल आपका खुद, सम पीपल आर एंटरप्रेन्योर्स, कुछ पायलट हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, वो आपको एक रूम में कन्फाइन कर देंगे, आपको सर ढक के आपको कहेंगे कि यही रोटी खानी है, यही खिचड़ी खानी है। ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना। Yeah, very तो difficult. आपको उस हिसाब से ही मॉडिफाई करना है। उस द होल रोल इज चेंज्ड। सो मदर इज टोटली इंडिपेंडेंट, शी हैज़ हर ओन
जॉब अपना काम है और उस हिसाब से उसको खुश भी रहना है, काम में भी प्रोडक्टिव रहना है और बच्चे को भी पालना है। करेक्ट, वो थर्ड स्ट्रेस ऐड हो All जाता developed है। societies are progressive and adaptable societies. Mhm. So I think with the changing scenario, we all need to adapt to the new That is the need of the time. need of the time, right? Right now, I'm glad so much of information, and thank you for so much of knowledge and wisdom to bring onto the table. It was a great conversation, and I hope a lot of mothers who are preparing for pregnancy and who are maybe going for the second pregnancy will get a lot of help from this. Thank you so much for coming to the Thank you show. for having. Thank so you. much. Thank you for watching till the end, and please don't forget to comment below and let us know what would you like to hear about next. We will invite that guest on the podcast and have the discussions about the mindset and emotional intelligence. Please do like, subscribe, and share, and thank you again for watching till the end.